Welcome once again. In last lecture, we have studied about central dogma, we have studied about RNA world, and we have seen why DNA is a better genetic material when compared to RNA. In this video, we are going to deal with replication. Hello, I am Deepak, and here I am going to show you some very important points and some very important information regarding this very interesting topic of molecular basis of inheritance, which is important both from boards and need point of view. Alright, so without wasting time, let's proceed. So, the topic here, as a headline, suggests that we are going to learn something about a process, because whenever you see any word and if it ends with ION, alright, if that word ends with ION, it means that the word is a process because it's a basic grammar which everyone studied in basic classes. All right, so wherever if any English alphabet ends with ION, whenever it ends with ION, then it is nothing but it is a process. All right. So if any word ends with ION, then it is a process. Or if any words end with sis, then again it is a process. For example, replication is a process. For example, transcription, it is again a process. For example, you talk of phagocytosis, then phagocytosis is again a process because phagocytosis is ending with sis. So if any English alphabet words is ending with sis or ion, it is a process, means it suggests that that is a process. All right, so here what we are going to study is all about replication. And which replication? DNA replication. This must be kept in mind, because whenever we are studying this chapter, we are only concerned with DNA replication. And what is replication? We are not concerned with RNA replication, because the process or the protein synthesizing machinery or the flow of information what we have learned yesterday, we have seen, or we have learned what we have learned in our last video. We have already seen that formation of DNA is important because we need to transfer a copy of that genetic material in our upcoming generation or progeny. That is why we need a replica. Otherwise, why we will need a replica? We don't need a replica of RNA because we do not need to transfer that RNA into our progeny, because we do have RNA, we do have DNA as a genetic material. If we would be a prokaryotes, then we must have thought about that. We must have thought about RNA replication. But as we are a eukaryote, and as most of the organism in this planet possess DNA as their genetic material, therefore DNA replication is the topic of discussion over here. All right, getting me? So should we proceed now? Now, what is replication? First, let's discuss this. See, as I have already told you, that replication is nothing but it is a process. Why it is a process? Because according to English also, you know that if any word ends with ION, then it is a process, right? So replication is a process, but किस चीज का process है ये? Which kind of process it is? It is a process of formation of replica of something. Replication को तोड़िए ना, replica plus एसन, replica plus एसन, replica के बनाने के process को ही replication बोलते हैं. और molecular basis of inheritance में या फिर molecular genetics में हमें किसका replica बनाना है? हमें अपने genetic material का replica बनाना है. क्यों बनाना है genetic material का replica? हमें अपने genetic material का replica इसलिए बनाना है क्योंकि उसकी एक कॉपी हमें अगले जनरेशन में, हमें अगले प्रोजेनी में ट्रांसफ़र करनी है. यदि उसकी एक कॉपी हमें अगले जनरेशन में, अगले प्रोजेनी में ट्रांसफ़र करनी है तो उसका एक कॉपी होना चाहिए. कॉपी होगा तभी तो ट्रांसफ़र कर पाएंगे. हम अपना वाला थोड़ी ना ट्रांसफ़र करेंगे. पेरेंट अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर देगा तो फिर पेरेंट का वजूद नहीं रहेगा ना. पेरेंट विल मतलब डाई. पेरेंट तो मर जाएगा ना. उसके अगर उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मेकिंग मशीनरी नहीं रहेगी तो पेरेंट से अल्टीमेटली डाई, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंथेसिस पाथवे जो पूरा है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. इसलिए कॉपी बनना जरूरी है, और इसी कॉपी बनने के प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं. All right, so what is replication? Process of synthesis of, what is replication? I have written it: process of synthesis of new DNA strand from parent DNA is called as DNA replication. मान लो, टेक फॉर एन एग्जाम्पल, आइए थोड़ा सा, ये मान लो कि आपका
यानी बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए, ये मान लो कि आपका डीएनए था, ये डीएनए था, और ये कौन सा डीएनए था, ये आपका पेरेंट डीएनए था। ऑलराइट, तो ये पेरेंट डीएनए से एक डॉटर डीएनए का बन जाना, एक डॉटर डीएनए का बन जाना क्या कहलाएगा, इट इज नोन एज रेप्लिकेशन। ऑलराइट, अब ये कैसे बनेगा पेरेंट से डॉटर, इट इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन और इट इज अ टॉपिक ऑफ स्टडी, वी विल डील इट। ऑलराइट, लेकिन इसी प्रोसेस को कि पेरेंट से एक डॉटर डीएनए का बनना और पेरेंट का भी वजूद रहना, ऐसा नहीं कि पेरेंट मतलब कन्वर्ट हो गया डॉटर में, पेरेंट से दूसरी कॉपी बनना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस बोलते हैं। ऑल राइट, क्लियर। आगे देखते हैं हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वही बात हमने लिखा है, क्या लिखा है कि प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड फ्रॉम पेरेंट डीएनए इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं। आपने जब सेल वाला चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th में, जब सेल बायोलॉजी आप पढ़ रहे थे, तो सेल बायोलॉजी में एक चैप्टर सेल डिवीजन से रिलेटेड था। उस सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आपने डिफरेंट फेजेस पढ़े थे सेल साइकिल के। उसमें एस फेज था, आपने एम फेज पढ़ा था, आपने इंटरफेज के बारे में पढ़ा था। एम फेज में आपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बारे में पढ़ा होगा। यदि मियोसिस पढ़ा होगा आपने, तो मियोसिस में मियोसिस 1, मियोसिस 2 के बारे में पढ़ा होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोफेज में स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने बेसिक जानकारी लेकर ही आप क्लास 12th में आए हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ठीक है, ऐसे अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो एक्चुअली में जब आपने उस चैप्टर को पढ़ा था तो आपको पता चला होगा कि ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, ये डीएनए का रेप्लिकेशन उसके एस फेज में होता है। एस फेज बोले तो सिंथेसिस फेज, मतलब कि जो सिंथेसिस फेज है ना उस सेल साइकिल में, वो सिंथेसिस फेज में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ऑलराइट, वही मैंने बात लिख दिया कि कहाँ होता है, इट अकर्स इन द एस फेज। कौन सा फेज, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और बहुत ही बेसिक है फॉर ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। इट अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ऑलराइट, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स का सेल होता क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं प्रोकैरियोट, और वही सिंगल सेल होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, फॉर परफॉर्मिंग ऑल द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ एंड दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वही प्रोकैरियोट का सिंगल सेल। तो यदि सिंगल सेल है और आपको पता है कि उसके अंदर न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते, मतलब कि न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, तो जो न्यूक्लियोइड जो होता है रीजन जो रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इसलिए यदि प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन किस में होगा, जिसमें डीएनए होगा, तो जिसमें भी डीएनए, और वो डीएनए यदि अपनी एक कॉपी बनाएगी ताकि उसको ट्रांसफ़र करना है किसी अलग ऑर्गेनिज्म में, तो वो साइटोप्लाज्म में ही प्रोसेस चलेगा। और ये साइटोप्लाज्म में प्रोसेस कब चलेगा, मान लो कि प्रोकैरियोट्स मेनली किससे डिवाइड करते हैं, बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन में होता क्या चाहिए, इन बाइनरी फिजन व्हाट अकर्स इन बाइनरी फिजन, मान लो कि अगर बाइनरी फिजन की बात करें तो व्हाट अकर्स इन बाइनरी फिजन में होता क्या, देखो अगर बाइनरी फिजन की बात करोगे तो एक ये बैक्टीरियल सेल रहा, एक बैक्टीरियल सेल कन्वर्ट हो जाता है, एक बैक्टीरियल सेल कन्वर्ट हो जाता है 2 बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, और यदि इस बैक्टीरियल सेल का, ये मान लो कि इसका जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल था फॉर इंस्टेंस, तो इसका जेनेटिक मटेरियल का एक कॉपी यहाँ पर भी चला जाएगा, ठीक है, और उसी का एक कॉपी आपका, उसी जेनेटिक मटेरियल का एक कॉपी यहाँ पर भी चला जाएगा। तो ये जो 2 कॉपियाँ गई, ये क्या हुई, ये 2 कॉपी का एक कॉपी यहाँ पर भी गया और दूसरा कॉपी यहाँ पर भी गया। तो जब दोनों कॉपियाँ यहाँ यहाँ दोनों जगह पर गई, तो यदि दोनों कॉपी दोनों जगह पर गई, ठीक है, दोनों कॉपी जब दोनों जगह पर गई, तो इन दोनों कॉपी में आपको क्या लगा कि इसकी जो है इसी की हो जाती है डिवीज़न। मतलब कि हुआ क्या होगा, कि हुआ क्या ना, कि ये जो अपना बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया डिवाइड करने से पहले देखिए इसमें ऐसा कुछ एक फरो लाइक स्ट्रक्चर बना होगा, ऐसा कुछ, और ये जब डिवाइड कर रहा होगा बैक्टीरिया, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, इसका जो जेनेटिक मटेरियल इसी बैक्टीरिया का था, ये जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में इट वॉज लाइक, ये भी जेनेटिक मटेरियल अपने आप को डिवाइड किया, ये जेनेटिक मटेरियल उसका अपने आप को डिवाइड किया, और फिर यही आपस में सेपरेट होके ये बना दिया एक दूसरा सेल, और ये दूसरा सेल बना दिया। दिस अकर्स एक्चुअली इन प्रोकैरियोट्स एंड इट इज अ मेथड ऑफ बाइनरी फिजन।
तो जो एक्चुअली में प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इट अकर जस्ट प्रायर टू बाइनरी फ्यूजन, मतलब बाइनरी फ्यूजन के जस्ट पहले में होता है। मतलब बाइनरी फ्यूजन जब दो सेल आपस में टूटने लग जाएंगे, वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा। एक डीएनए जो रेप्लिकेट करके दो बनाया, एक पार्ट एक सेल में चला गया, दूसरा पार्ट दूसरे सेल में चला गया, और एक प्रोकैरियोट से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया बन गए। ऑल राइट, यही होता है, वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि इन प्रोकैरियोट्स, दैट इज प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड इट अकर्स जस्ट प्रायर टू बाइनरी फ्यूजन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और यूकैरियोट्स में आपको पता है कि डीएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियस के पास में ही होगी, और वो कहाँ होगी, वो न्यूक्लियस में ही होगी। और न्यूक्लियस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स प्रेजेंट इन ए specialized region and covered by a double membranous structure which is known as nuclear membrane, which have some kinds of protein and supported by lamins protein. They are highly मीन्स क्या होते हैं, हाईली, मतलब वो बाउंड्री, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्चुअली फॉर्म्स द बाउंड्री एंड कंट्रोल्स द लिमिट ऑफ सब्सटेंस गोइंग इनसाइड द न्यूक्लियस। ऑल राइट। और भी जो इन्फॉर्मेशन जो बनता है हमारे ने वो सेल में उसी के माध्यम से आता है। न्यूक्लियस में जो इन्फॉर्मेशन बनती है वो एक चैनल के भी रूप में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रोल प्ले करता है। ऑलराइट। और यूकैरियोट्स में यदि आप बात करोगे तो यूकैरियोट्स में ऐसा तो है नहीं कि ओनली न्यूक्लियस हैज द डीएनए। व्हेन वी टॉक ऑफ यूकैरियोट्स देन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लास 11th दैट इन यूकैरियोट्स देयर आर टू अदर सेल ऑर्गेनेल विच इज नोन एज प्लास्टिड, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट मेनली बोलते हैं, क्योंकि प्लास्टिड तीन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों जो सेल ऑर्गेनेल हैं इनके पास अपना डीएनए प्रेजेंट रहता है। अब इनके पास यदि अपना डीएनए प्रेजेंट है तो इनके अंदर भी जो डीएनए प्रेजेंट है उसमें भी इससे रेप्लिकेशन होगा। तो यदि उसमें भी रेप्लिकेशन होगा तो उसके भी कॉपीज बनेंगे। ऑलराइट। तो प्रोकैरियोट्स में तो कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में एक तो न्यूक्लियस में भी होता है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। यूकैरियोट्स में क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना भी डीएनए है और वो अपना भी प्रोटीन बनाता है। इसीलिए उन दोनों सेल ऑर्गेनेल को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। और ये बातें आपको पता है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ क्लास 11th। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वाइल ग्रोइंग, जब हम लोग वाइल गिविंग द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक दे रहे थे, वाइल गिविंग द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, एज वी ऑलरेडी नो, हमने ये बात पढ़ कर आया है कि वाटसन और क्रिक ने ही डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया। तो वाइल गिविंग द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक गिव द स्कीम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और ये बात एनसीईआरटी में लिख रखी है, ये बात एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिख रखी है कि जब वाटसन और क्रिक ने इस बात को एक्सप्लेन किया था, व्हेन वाटसन एंड क्रिक एक्सप्लेन्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जब उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया, जब उसकी कॉम्प्लीमेंटरिटी को एक्सप्लेन किया, जब उसके एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, उसी समय पे वाटसन और क्रिक ने एक स्कीम को प्रपोज किया था कि यदि ये रेप्लिकेट करेगा डीएनए तो इसके जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों स्ट्रैंड्स आपस में सेपरेट हो जाएंगे और एक स्ट्रैंड एक टेम्पलेट के रूप में काम करेगा और उससे फिर एक कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी उसके ही अनुसार, क्योंकि जो बेसिस रहेंगे वो मीडियम में प्रेजेंट रहेंगे और वहाँ से वो नाइट्रोजन बेसिस लेगा और आपस में जोड़ के एक नया स्ट्रैंड बना देगा। उसी तरह से दूसरा स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में काम करेगा और वो भी एक नया स्ट्रैंड बना देगा और उसी प्रकार एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएगा। गेटिंग मी? वही बात मैंने नीचे लिख रखा है। क्या लिख रखा है? उन्होंने बताया था कि द पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक एंड ईच स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब कि जो पेरेंट स्ट्रैंड, जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है डीएनए, उसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ये बात आपको भी पता है। उसमें कितने स्ट्रैंड, मान लो यदि ये डीएनए है और इसके बीच में ये बेस पेयर्स हैं, तो ये जब रेप्लिकेट करेगा तो एक ये अलग हो जाएगा, इसके बीच का हाइड्रोजन जो बॉन्ड था, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड था ये टूटेगा और एक डीएनए का स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। तो ये यदि स्ट्रैंड नंबर 1 है तो ये स्ट्रैंड नंबर 2। और इसमें हालांकि आपको पता है कि जब नाइट्रोजन बेसिस वाला मीडियम में इसको रखा जाएगा तो क्या होगा, वहाँ से नाइट्रोजन बेसिस लेगा और फिर ये अपना फिर यहीं पर एक अपना नया स्ट्रैंड बन जाएगा और ये रहा आपका नया स्ट्रैंड। देखिए ये है आपका नया स्ट्रैंड और ये फिर वापस एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बन गए, जिसमें कि एक क्या है, एक पेरेंट का स्ट्रैंड है और दूसरा न्यू स्ट्रैंड है। आ रही बात समझ में? तो एक से कितने बन गए? दो बन गए ना।
यही बताया था उन्होंने कि इसी प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मतलब कि द पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक एंड ईच स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। एनी प्रॉब्लम? जो मैंने आपको बातें बताई वही बात मैंने नीचे डायग्राम के फॉर्म में दिखा दिया। ये आपका पेरेंट स्ट्रैंड है डीएनए का, रेप्लिकेशन होगा, क्या होगा, एक स्ट्रैंड अलग हुआ, एक नया स्ट्रैंड बन गया, एक न्यू स्ट्रैंड बना कि नहीं, ये देखो मैंने लिख भी रखा नीचे, एक न्यू स्ट्रैंड बना, और न्यू स्ट्रैंड को अपन डॉटर डीएनए बोलेंगे। यदि ये पेरेंट डीएनए है, यदि ये आपका पेरेंट डीएनए है तो ये डॉटर डीएनए होगा, तो एक से दो बनेगा तभी तो रेप्लिकेट करेगा। और इस जो जो बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट का होगा और एक स्ट्रैंड न्यू होगा, एक स्ट्रैंड पेरेंट का होगा, एक स्ट्रैंड न्यू होगा। इससे एक बात आपको पता चल रहा है कि जो दो डॉटर डीएनए बन रहे हैं उसमें 50% पेरेंट का कंट्रीब्यूशन और 50% न्यू है। इसीलिए आपको एक बात आप कह सकते हैं कि नहीं, कि पेरेंट जो है आधा कंजर्व हुआ है, मतलब कि एक डीएनए में पेरेंट का 50% कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि पेरेंट का कंजर्वेशन रेशियो 50% है। इसीलिए पेरेंट जबकि आधा जब कंजर्व हुआ है तो आप क्या कह नहीं सकते कि ये सेमी कंजर्वेटिव तरीका है रेप्लिकेशन का? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सेमी का मतलब आधा और कंजर्वेटिव का मतलब कंजर्व होना, मतलब कि पेरेंट डीएनए का स्ट्रैंड 50% कंजर्व हुआ है। देयरफॉर दिस मेथड ऑफ रेप्लिकेशन इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। व्हाई इट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन? बिकॉज इन न्यू strand which is in new DNA strand which is formed, 50% is the part of parents and 50% is the part of इस द न्यू पार्ट, और 50% जो एक डीएनए का पार्ट है, मतलब कि एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट से आया है और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो फॉर्म हुआ है। कैसे फॉर्म हुआ है? जो अपना सब्सटेंसेस जो कल्चर मीडियम में जो बेसिस रखे थे वही बेसिस का जुड़ाव हुआ है, वहाँ पर ये आपस में फॉर्म हुआ है। तो 50% पेरेंट 50% न्यू, इसीलिए इसे क्या बोला गया? इट इज़ नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मोड। और ये न्यू स्ट्रैंड आपको ब्लू से दिखा रखा है, रेड से आपका पेरेंट स्ट्रैंड। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? ये दोनों डॉटर डीएनए, कोई दिक्कत यहाँ तक होना तो नहीं चाहिए। ऑलराइट, ऐसे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपने सीखा कि जो रेप्लिकेशन है अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने बताया था कि जो दो स्ट्रैंड है उन दो स्ट्रैंडों में एक स्ट्रैंड आपस में अलग होगा, दोनों स्ट्रैंड आपस में अलग होंगे और वो दोनों स्ट्रैंड पे फिर एक एक स्ट्रैंड जुड़ जाएगा। यदि उन दोनों स्ट्रैंड में फिर एक एक स्ट्रैंड यदि जुड़ जाता है तो क्या होगा? दोनों स्ट्रैंड में यदि एक एक स्ट्रैंड जुड़ जाता है तो एक पेरेंट से दो डॉटर बनेंगे, और उस डॉटर डीएनए में एक स्ट्रैंड पेरेंट का था। जब हमने रेप्लिकेशन करवा के देखा तो पेरेंट 50% कंजर्व हुआ, देयरफॉर इट इज ए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेथड अभी हमने देखा, जो वाटसन और क्रिक ने बताया था, उस अनुसार से तो वो सेमी कंजर्वेटिव तरीका था, लेकिन इसके अलावा भी 3 और तरीके बताए गए थे डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद। देखिए, जब 1952 में जब ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो ये भी प्रूफ ऑफ करना था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे, जो अगर है जेनेटिक मटेरियल तो उसका रेप्लिकेशन कैसे होगा, क्योंकि यदि रेप्लिकेशन नहीं होगी तो इसकी कॉपी अपने प्रोजेनी में कैसे जाएगी? बहुत सारे सवाल हैं। इफ इट डज नॉट फॉर्म इट्स रेप्लिका देन हाउ विल इट्स कॉपी गेट ट्रांसफर्ड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट प्रोजेनी? एम आई क्लियर? तो इसके लिए 3 तरीके बताए गए थे कि डीएनए इस प्रकार से रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब डीएनए इस प्रकार से अपनी कॉपी बना सकता है। तो 1952 हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट जो कि प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाद जो 3 मेथड्स उसी डीएनए के रेप्लिकेशन के थे वो कौन कौन थे, और अल्टीमेटली कौन डिसाइड हुआ कि नहीं यही तरीका बेस्ट है और बाकी तरीके फर्जी हैं, बाकी तरीके गलत हैं और बाकी तरीके एक्सेप्टेड नहीं हैं, क्योंकि वैसा नहीं होता है। एंड इट वॉज प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली बाय 2 साइंटिस्ट, मेसेल्सन एंड स्टॉल, विच वी विल सी इन अपकमिंग स्लाइड। ऑलराइट, लेकिन वो पहले 3 तरीके कौन से हैं? व्हाट आर दोज 3 मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? लेट्स हैव अ लुक ऑन दोज। ऑलराइट, इट्स वेरी इजी, जस्ट नोट इट डाउन एंड रिवाइज इट वंस। ऑलराइट, प्लीज see it. What is that? Let me explain it again. Let me explain it once. Sorry. See, it is the parent DNA. मैंने मान लिया कि अपना parent DNA which is represented by black line. Alright. अगर ये parent DNA है तो पहला जो तरीका था, जो फर्स्ट मेथड जो था, इट वॉज नोन एज कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इट वॉज कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। कहने का मतलब कि एक पेरेंट डीएनए जो है वो पूरी तरह से कंजर्व हो जाएगा, मतलब उसका कुछ भी पार्ट नए वाले में नहीं जाएगा, मतलब कि डॉटर डीएनए में पेरेंट का कंट्रीब्यूशन निल रहेगा।
क्या रहेगा, मतलब कि कहने का मतलब यदि ये पेरेंट है तो इसी पेरेंट से एक डायरेक्ट न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन ओवर हियर बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न्ड ऑफ डीलिंग विद दोज थिंग विच आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ऑलराइट, समझ रहे बात को। तो ये पेरेंट डीएनए है, ये पेरेंट डीएनए से एक न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा, इनका कहना था, एक तरीके का कहना। तो ये कैसा मेथड हुआ, कंजर्वेटिव। क्यों कंजर्वेटिव मेथड हुआ, आप पूछ सकते हैं ना, वाई इट इज कंजर्वेटिव। इट इज कंजर्वेटिव मेथड बिकॉज पेरेंट डीएनए इज कंप्लीटली कंजर्व्ड हियर। यहाँ पे पेरेंट डीएनए कंप्लीटली कंजर्व हो गया ना, पेरेंट डीएनए हियर इज कंप्लीटली कंजर्व, देयरफॉर इट इज नोन एज कंजर्वेटिव मेथड। लेकिन ये तरीका एक्सेप्टेड नहीं हुआ क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जब प्रूव किया गया तो ऐसा नहीं होता था, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया। आगे देखते हैं, जो अगला तरीका था वो तो हम पढ़े ही हैं, सेमी कंजर्वेटिव। मतलब कि एक स्ट्रैंड जो थे, एक स्ट्रैंड यहाँ से सेपरेट हुआ, एक स्ट्रैंड यहाँ से सेपरेट हुआ और दो स्ट्रैंड बनाया जिसमें कि 50% पेरेंट और 50% न्यू। इस तरीका को हमने क्या बोला था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जिसमें कि 50% पेरेंट का कंट्रीब्यूशन था और 50% न्यू का कंट्रीब्यूशन था। तो उसे हमने क्या बोला, और यही एक्सेप्टेड मोड है। वाई इट इज एक्सेप्टेड, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली इट वॉज प्रूवन बाई 2 साइंटिस्ट, मेसल्सन एंड स्टॉल। और इसी का एक्सपेरिमेंट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। और ये क्यों एक्सेप्टेड है, बिकॉज इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव। यहाँ पे होता क्या है, सारी बातें मैंने लिख भी रखी है फिर से। 2 स्ट्रैंड सेपरेट, ईच स्ट्रैंड लेटर ऑन फॉर्म्स 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एनी प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक। जो अगला मेथड है और अगला टेक्निक है, उसमें क्या होता है ना, एक डीएनए, मान लो ये एक डीएनए है, ठीक है, ये एक डीएनए। अब ये डीएनए का होगा क्या ना, ये देखो, ये डीएनए आपस में यहाँ से एक जगह से टूट गया, ये यहाँ से टूट गया। अब देखो क्या होगा इस डीएनए का। ये डीएनए जो है ना, ये जब यहाँ से टूट गया तो मान लो एक डीएनए का ये टुकड़ा रह गया आपका, ये वाला एक टुकड़ा रह गया डीएनए का, और एक टुकड़ा डीएनए का ये रह गया, ठीक है। तो जब एक टुकड़ा डीएनए का ये रह गया ना, और एक टुकड़ा डीएनए का ये रह गया, और जो बीच वाला टुकड़ा है वो ये रह गया, होगा क्या इससे कि देखिए, इसके ऊपर में ना, इनका कहना था कि इसके ऊपर में नया स्ट्रैंड ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये ऊपर में बन गया, ठीक है, ये इस प्रकार से। मतलब कि ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड। तो ये कैसा तरीका, इट इज़ अ डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब कि बीच का कुछ पार्ट टूटा और उस टूटे हुए पार्ट से वापस रेप्लिकेट कर गया। आप देखते हो, नहीं देखे हो कभी कभी कि कोई पार्ट टूट जाता है, वो वापस रीजनरेट होने वाले प्रोसेस है, जनरली प्लानेरिया में देखने को मिलता है, जिसे प्रोबेबली अ मेंबर ऑफ एस्केलेमेंथिस, ठीक है। तो प्लानेरिया वाला मेथड किसी साइंटिस्ट ने बताया कि डीएनए भी उसी प्रकार से रेप्लिकेट करता है, लेकिन ये भी मेथड एक्सेप्टेड नहीं हुआ, और इस मेथड को अपन बोलते हैं डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। और ये भी एक्सेप्टेड नहीं हुआ, क्यों नहीं एक्सेप्टेड हुआ, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये वाला मेथड आया ही नहीं उभर के सामने, मतलब कि ऐसा हो ही नहीं रहा था। What happens here? Your parent DNA breaks into many small fragments and each fragment forms a new DNA strand, like regeneration. Regeneration में यही होता है, अरे रीजनरेशन में तो यही होता है ना, रीजनरेशन जो प्रोसेस है उसमें यही होता है कि एक जो पार्ट होता है वो आपस में क्या करते हैं, टूटते हैं, और दूसरा जो पार्ट उससे बन जाता है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल प्लानेरिया है। और फ्रैगमेंटेशन में भी मान लो स्पाइरोगायरा का कुछ फ्रैगमेंट टूट गया, उससे वापस नया फ्रैगमेंट बन गया। तो भाई ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थोड़ी ना है कि हम उसका टेक्निक वहाँ पे लगा कर डीएनए में लगा दिए, और ऐसा हुआ भी नहीं। जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ही पाया गया। पर कैसे पाया गया, किस प्रकार से एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, वो एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है। और वो एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मैंने अभी आपको बताया कि मेसेल्सन और स्टॉल नाम के साइंटिस्ट ने किया था। फ्रैंकलिन मेसेल्सन एंड स्टॉल, दिस वर 2 साइंटिस्ट हु डिड दिस एक्सपेरिमेंट। मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 1958 में किया था। 1952 में ये प्रूफ हो गया था अनइक्विवोकली कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और 1958 में ये भी प्रूफ हो गया कि डीएनए रेप्लिकेट्स ओनली थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सो लेट मी समराइज व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ इन दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में सीखा कि रेप्लिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए रेप्लिका, मतलब डीएनए की एक कॉपी के बनाने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं। हालांकि उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे, लेकिन रेप्लिकेशन इज कंपैरेटिवली थॉट और कंपैरेटिवली स्टडीड और कंपैरेटिवली एनालॉगस टू रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को ही हम यहाँ पर रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर आरएनए रेप्लिकेशन हम पढ़ते तो हम भले ही इसे डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, लेकिन इस चैप्टर में डीएनए रेप्लिकेशन ही पढ़ना है। और डीएनए रेप्लिकेशन ही इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया शुरुआती लेक्चर के पार्ट में ही। लेटर ऑन वी स्टडीड कि
जो अपना डीएनए रेप्लिकेशन है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का? फर्स्ट इज कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें कि पेरेंट पूरी तरह से 50% नहीं बल्कि पूरी तरह से 100% कंजर्व हो जाता है। और जो न्यू डॉटर होती है वो बिल्कुल न्यू ही होती है, टोटली न्यू होती है, उसमें पेरेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है। जो दूसरा टाइप का हमने पढ़ा वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा, उसमें 50% पेरेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए उसको सेमी कंजर्वेटिव बोले। सेमी का मतलब हाफ और कंजर्वेटिव का मतलब कंजर्वेशन, दैट इज प्रिजर्वेशन। और जो थर्ड मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, जो थर्ड मोड ऑफ अपना रेप्लिकेशन है, दैट इज नोन एज डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, वेयर डीएनए ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट, सेम लाइक अ प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन व्हाट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th। ठीक है। और उसमें क्या होता है, वो फ्रैगमेंट वापस में रीजनरेट करके और वापस में बेस पेयर्स को और जो अपना कल्चर मीडियम रहेगा वहाँ से बेसिस नाइट्रोजन बेसिस को लेके अपन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के एक न्यू डीएनए के स्ट्रैंड को बना देगी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया था इन तीनों में से मात्र मिशेल्सन और स्टॉल के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, विच इज मोस्टली एक्सेप्टेड फॉर दिस, उसमें पाया गया कि नहीं, ओनली सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन एक्चुअली अकर्स लेटर ऑन। हालांकि जो मिशेल्सन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट था वो प्रोकैरियोट्स में था, हालांकि और भी एक्सपेरिमेंट किए गए यूकैरियोट्स में भी, और यूकैरियोट्स रहे चाहे प्रोकैरियोट्स, दोनों में ही ये देखने को मिला कि द मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज नन अदर देन सेमी कंजर्वेटिव टाइप। ऑल राइट। तो जो हमने अभी तक यही पढ़ा, तो जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन का जो एक्सपेरिमेंट था, इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वाई इट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी। और इस एनसीईआरटी में आपका ये दे रखा है अच्छा एक्सप्लेनेशन में, और एनसीईआरटी में 1 से 1.5 पेज में ये दे रखा है, मोर देन 1.5 पेज एनसीईआरटी ने इस टॉपिक के लिए दिया। इट मीन्स दैट इट हैज सम वेटेज, इट हैज सम वेरी इंपॉर्टेंट आइडियाज विच एनसीईआरटी और विच आवर मैनेजमेंट नीड्स आवर स्टूडेंट्स टू लर्न। दैट इज वाई लेट अस मूव टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, जिसे हम 6.4.1 पेज नंबर 104 एनसीईआरटी में जो चीज़ दे रखा है, उसे जो टॉपिक जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, उसे अब हम सीखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में क्या क्या होस्ट मतलब किसको होस्ट के रूप में लिया गया, कौन से कल्चर मीडियम थे और क्या सारी चीज़ें की गई, वो सारा हम अभी देखेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। ऑलराइट। तो हम अब यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए ये सारी बातें आपको पता है कि सेमी का मतलब क्या होता है हाफ, कंजर्वेटिव का मतलब कंजर्व दैट इज पेरेंट, हाफ इसमें कंजर्व हो जाता है इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। और क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ रहे हैं। किसके द्वारा किया गया था आपको मैंने अभी भी बताया, फिर से मैं बताता हूँ। पूरा नाम है मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। कब किया गया, 1958 में। 1952 में अनइक्विवोकल प्रूफ आया था मर्था मतलब कि चेस और हर्षी चेस और मर्था के एक्सपेरिमेंट से। ऑलराइट। और 1958 में ये सेमी कंजर्वेटिव वाला एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंटल मॉडल अपना इकोलाई ही था, और इकोलाई अपना एक्सपेरिमेंटल मॉडल और कहाँ पे था, उसके भी एक्सपेरिमेंट में जो होस्ट हमने लिया था इट वॉज नन अदर देन इकोलाई। और इन्फेक्शन हमने बैक्टीरियोफेज से करवाया था व्हेन वी हैव स्टडीड दैट ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्षे एंड चेस। ऑलराइट। तो यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंटल मॉडल इकोलाई। जो ये इकोलाई है ना भाई साहब, ये इकोलाई जो बैक्टीरिया है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड बैक्टीरिया इन बायोलॉजी। और बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में ये जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला बैक्टीरिया है इकोलाई। ऑलराइट। अब इसमें जो इस्तेमाल किया गया चीज़ वो था अपना N15 का यूज़ किया गया था। N15 देखिए, जो ऊपर में जो अपना ये जो ऊपर में जो हम लिखते हैं ना पैरास्क्रिप्ट, इसे अपन पैरास्क्रिप्ट बोलते हैं। जो नीचे में चीज़ें लिखी जाती है उसे अपन सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। आ जाओ 1 मिनट, पहले मैं बता देता हूँ। मान लो कि ये N15 लिख रखा है, ये बातें आपको पता होगी। ऐसे N15 में जो ये जो पोर्शन होता है ना, ये बताता है अपना मास नंबर को। किसे बताता है, ये मास नंबर को बताता है। और नीचे में जो पोर्शन होता है, चाहे ए रहे चाहे एन रहे, ये जो पोर्शन होता है इट एक्चुअली टेल अस एटॉमिक नंबर। ठीक है, कि उसका एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का क्या है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, तो इसका एक्चुअल में मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 14, लेकिन है क्या है यहाँ पर 15। इसका मतलब कि इट इज़ ए आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। और मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इंक्रीज इन न्यूट्रॉन्स। ऑलराइट। प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे लेकिन न्यूट्रॉन में इंक्रीज हो जाने के कारण वो आइसोटोप बन जाता है। ऑलराइट, आ गई बात है समझ में। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया था हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। हेवी आइसोटोप क्यों बोले, क्योंकि उसका मास नंबर बढ़ गया 15 था। और लाइट आइसोटोप दैट इज N2 दैट इज 14।
कोई दिक्कत यहाँ पर, ये दोनों चीज़ों को इस्तेमाल किया गया। कैसे क्या किया गया आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर इन दोनों को, इसी दोनों को N15 और N14 जो हैवी आइसोटोप और लाइट आइसोटोप लिए गए नाइट्रोजन को, इनको सेपरेट किया गया डेंसिटी के बेसिस पे। अब किसी भी चीज़ को डेंसिटी घनत्व के बेसिस पे यदि सेपरेट करते हैं तो उसके लिए कौन सी टेक्निक अपन इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रीफ्यूजेशन। इसमें क्या करते हैं, पार्टिकल्स को काफ़ी ज़्यादा तेज स्पीड में रोटेट कर दिया जाता है। मीन्स पार्टिकल इज रोटेटेड एट वेरी हाई स्पीड एंड द पार्टिकल और द substances which is having high density, that is high mass, all right, that gets settled at the bottom or it forms the pellet, and which is having a lower density, it forms the supernatant. We have also seen the process of centrifugation in the experiment of Hershey and Chase, because there was again three types of steps were involved in their experiment, and what was those, infection, blending and centrifugation. We have already studied that. Same centrifugation यहाँ पर भी करते हैं, और वो centrifugation mainly किसके बेसिस पे होता है, डेंसिटी बेस्ड होता है। ऑल राइट, तो यहाँ पर भी डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। लेकिन यदि आप सेंट्रीफ्यूगेशन करवाओगे तो कोई मीडियम होना जरूरी है। अरे भाई, जनरली हम मानते हैं, मान लो कि ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट वाटर में होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे एक्सपेरिमेंट वाटर में ही हों। तो जो यहाँ पर जो मीडियम लिया गया था, यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिया गया था जिसको मीडियम के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को कैरी आउट किया गया, दैट मीडियम वाज मेड अप ऑफ सीजियम क्लोराइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 100 बार यदि इस पर सवाल पूछा जाए तो भी कम नहीं है, और ये चीज़ें पूछी जाती है, या आपसे पूछ लेगा विच मीडियम वॉज यूज्ड in density based centrifugation process of semi conservative mode of replication given by Matthew Michelson and Franklin Stone। क्वेश्चन भी बड़ा, आंसर बहुत आसान, लेकिन उसके लिए जो इन चीज़ों को काफ़ी बारीकी से पढ़ा है। हालांकि इट्स नॉट दैट रॉकेट साइंस क्वेश्चन और इट्स नॉट दैट टफ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपको घुमाया जा सकता है। तherefore आपको यह ध्यान रखना है कि जो मीडियम इस्तेमाल हुआ था वो कौन सा मीडियम था, मीडियम वॉज मेड अप ऑफ सीजियम क्लोराइड। ऑलराइट, वो मीडियम कौन था, सीजियम क्लोराइड मीडियम था, और सीजियम क्लोराइड मीडियम में ही डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को करवाया गया था। अब मान लीजिए कि आप इसमें डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को करवाते हैं, आपने टेस्ट ट्यूब लिया, मैंने टेस्ट ट्यूब के माध्यम से दिखा कर रखा है, वो कोई और भी ट्यूब या फिर वो कोई और भी वेसल या फिर कोई और भी एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी मटेरियल ले सकते हैं, एनी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। इस टेस्ट ट्यूब में जब आप करवाओगे, मान लो आप N14 और N15 का नॉर्मल छोड़ दो अभी एक्सपेरिमेंट, आप जब डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन करवाओगे तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो बॉटम में पैलेट बनाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो सुपरनेटेंट या फिर सरफेस पार्टिकल्स या फिर सरफेस मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। एनी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी बेसिक एंड वेरी इजी। और अगर हार्ड भी है तो मैं समझा दूंगा। अरे भाई आसान है ना, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा भारी है, जिसका घनत्व ज़्यादा है, वो डूबेगा। सुई पानी में क्यों डूबता है, बिकॉज इसका डेंसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सुई जो है कि मतलब कि लकड़ी से भारी होता है, सुई लकड़ी से भारी नहीं होता, फिर भी सुई डूब जाता है पानी में। बाई बिकॉज जो सुई की डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो उसकी है, इट इज़ मोर देन वुड, क्योंकि वुड में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और उसमें स्ट्रक्चर्स काफ़ी पोरस होते हैं, ठीक है, इसके कारण उसकी डेंसिटी कम होती है, दैट्स वाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर। लेकिन वहाँ पर मीडियम वाटर हो सकता है, कोई और मीडियम में कुछ और एक रिजल्ट आए। तो यहाँ पर जो हमने मीडियम लिया, वी हैव टेकन सीजियम क्लोराइड, और जो चीज़ें भारी रहेगी वो बॉटम में जाएगी और जो चीज़ें हल्की रहेगी वो टॉप और सरफेस में जाएगी। आपको पता है कि N15 इज़ ए हैवी आइसोटोप, देयरफॉर जब हम इसका डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे तो नीचे में N15 अपना एक बैंड बना लेगा, कोई दिक्कत, ये नीचे में अपना एक बैंड बनाएगा और N14 ऊपर में अपना एक बैंड बनाएगा। आपको पता है कि N15 जो है जनरली रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, N15 रेडियो एक्टिव होता है, तो ये नीचे में जाकर अपना बैंड बना लेगा। सॉरी, N15 के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम अपन आगे डिस्कस करेंगे, होता है कि नहीं होता है। हालांकि आपको ये बात पहले से पता जरूर होगी कि N15 इज़ नॉट ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप। सॉरी, मैं गलत बोल गया, मैं किसी और के बारे में सोच लिया था, मेरे को ध्यान आ गया, वो जो एक्सपेरिमेंट था बैक्टीरियोफेज वाला ना, उसका मेरे को ध्यान आ गया, रेडियो एक्टिव, वहाँ पर सल्फर और फॉस्फोरस हम पढ़े थे ना। नो, N15 इज नॉट ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इट्स अ नॉर्मल आइसोटोप। ये रेडियो एक्टिव नहीं होता, मतलब कि इससे किसी भी प्रकार का अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन नहीं निकलते हैं, कोई दिक्कत। तो अपना जो मेन फोकस यहाँ पर क्या है, अपन डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे हैं, और हमने क्या देखा, जो हैवी आइसोटोप थे N15 वाला वो नीचे सेटल करेगा और N14 वाला ऊपर सेटल करेगा। यही अपना मेन यहाँ पर इस जो डायग्राम से समझाने का मेन मुद्दा यही था। और जो अपना ये मीडियम जो प्रेजेंट है वो कौन है, सीजियम क्लोराइड प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब। ये बातें आपको पता है। एनी प्रॉब्लम। एक्सपेरिमेंट में हमने किया क्या,
हमने किसे लिया था एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, एक्सपेरिमेंटल मॉडल किसे लिया था, इकोलाई पे सारा एक्सपेरिमेंट करना था। इकोलाई को यहाँ पर भी इस्तेमाल किया। अब क्या किया ना, हमने इकोलाई को पकड़ कर लाया बैक्टीरिया को कि चल भाई फिर तेरा काम आ गया। इकोलाई को हमने पकड़ा और क्या लिया हमने, अमोनियम क्लोराइड लिया। अब नॉर्मल नाइट्रोजन तो आप ले नहीं सकते, नाइट्रोजनस कंपाउंड ही आप लेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, उस सॉल्ट को हमने लिया और क्या किया, वहाँ पे ई कोलाई को छोड़ दिया, उस बैक्टीरिया को, ई कोलाई को उसी मीडियम में जो अमोनियम क्लोराइड वाला मीडियम था, जिसमें कि N15 वाला नाइट्रोजन था, N15 वाला नाइट्रोजन था, उसका अमोनियम क्लोराइड का हमने कल्चर मीडियम तैयार किया और वहाँ पे ई कोलाई को ग्रो करवाया। और ई कोलाई को हमने वहाँ पे काफ़ी जनरेशन तक ग्रो करवाया, इतना जनरेशन तक ग्रो करवाया ताकि जब तक उसको वहाँ पर ग्रो करवाया जब तक कि उसके जो प्रोजेनी है, मान लो ई कोलाई डिवाइड करेगा, तो ई कोलाई यदि डिवाइड करेगा तो उसको डीएनए सिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरत होगा, उसको डीएनए सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल ज़रूरत होगा, उसको डीएनए की सिंथेसिस के लिए। अब मान लो ई कोलाई बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगा, यदि उसके लिए फेवरेबल कल्चर मीडियम आप तैयार कर दोगे, उसको खाना ही खाना चारों तरफ दे दोगे उस बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया गंदगी जो सीवेज वाटर होता है उसमें क्यों ज़्यादा ग्रो करता है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया के लिए तो ऑर्गेनिक मैटर फूड है, तो काफ़ी रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा उस फूड को इस्तेमाल करके। अब मान लो ई कोलाई को हमने अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट पे ग्रो करवा दिया। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, जब डिवाइड करेगा ना, तो वो जो उसका डीएनए है, उसके डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट रहते हैं। तो उसके लिए नाइट्रोजनस बेसिस जो डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं, तो जब वो डीएनए बनाएगा तो उसको नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन कहाँ से लेगा, अपने कल्चर मीडियम से लेगा। अगर वो नाइट्रोजन 15 टाइप है तो वही लेगा उसके डीएनए में। तो हमने उस बैक्टीरिया को तब तक ग्रो करवाया जब तक कि उसके जो प्रोजेनी बैक्टीरियास हैं, उसके जो बैक्टीरिया डिवाइड करके जो बन रहा है, उसके डीएनए में N15 इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाता है। मतलब कि वी डिवाइडेड और वी ग्रीव द बैक्टीरिया इन कल्चर मीडियम टिल दैट टाइम, मल्टीपल जनरेशन तक करवाया। वहीं से कल्चर मीडियम से नाइट्रोजन लेता गया और अल्टीमेटली हमने ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया था वहाँ पर जो ग्रो कर रहा था, इकोलाई डिवाइड कर करके जो उसकी प्रोजेनी बनी, उसमें नाइट्रोजन 15 जो था, जो अपना मेन होप था, जो अपना मेन फोकस था कि उसके डीएनए में N15 आ जाए, वो आ गया, क्योंकि वहीं से वो नाइट्रोजन बेसिस लेके अपना डीएनए बनाया। वही मैंने लिख रखा है, कल्चर्ड इन मीडियम कंटेनिंग NH4Cl till the entire DNA and other nitrogenous compound had N15. Any problem? कल्चर कहने का मतलब क्या हुआ, इकोलाई को ग्रो करवाओगे और बाइंडरी फ्यूजन प्रमोट होगा। क्योंकि आपको पता है यदि रिप्रोडक्शन करे बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया ग्रोथ करे, दे बोथ आर एनालॉगस, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ इज एनालॉगस इन दिस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दिस इज पार्ट ऑफ क्लास 11th और आपने इन बातों को समझ, आपको पता भी होगा। इन प्रोकैरियोट्स में हम यही बोलते हैं। अब आगे हुआ क्या, जब ई कोलाई के जब डीएनए को जब हमने काफ़ी जनरेशन तक ग्रो करवाया, फिर हमने इसे डेंसिटी वेस्ट इसके डीएनए के सेंट्रीफ्यूगेशन किया। इसके डेंसिटी वेस्ट, इसकी डीएनए जो बैक्टीरिया हमने काफ़ी जनरेशन तक ग्रो करवाया, उसको वहाँ से उठाया कल्चर प्लेट पे, उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए को, कैसे उसके डीएनए को निकालेंगे और कैसे उसके डीएनए को डालकर हम उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ोगे कि डीएनए को स्पूलिंग मेथड से निकाला जाता है। डीएनए को काटने के लिए पहले सेल वॉल को काटना पड़ेगा। अगर बैक्टीरिया है, पहले उसके बाहर सेल वॉल होगा, तो सेल वॉल को किस चीज़ से काटेंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल को लाइसोजाइम एंजाइम से काटते हैं। फिर उसे इसके सेल मेम्ब्रेन को टीयर अप करना पड़ेगा, उससे काफ़ी ज़्यादा आरएनएस जो हैं, प्रोटीन्स जो हैं, उसको सबको रिमूव करके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तभी तो उस डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन करवा पाएंगे। तो उसी डीएनए का मान लो कि हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाना था, तो हमने डीएनए किसी तरह निकाल लिया। क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो कैसे निकालेंगे ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए तो आप मान लो कि मैंने उसे डीएनए निकाल लिया और ये डीएनए निकाल के यहाँ आपके कॉपी पे रख दिया। अगर डीएनए मैंने ई कोलाई का डीएनए जो मैंने वहाँ पर ग्रो करवाया था निकाल कर रख दिया, तो होना क्या चाहिए था, वो काफ़ी जनरेशन तक वैसे मीडियम में ग्रो किया जहाँ पर नाइट्रोजन 15 था, इसलिए वहाँ पर नाइट्रोजन 15 उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया दोनों ही स्ट्रैंड में। और होना भी चाहिए, क्योंकि सारा नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन तो होगा ही होगा। इन प्यूरिन फर्स्ट, थर्ड, सेवन्थ, नाइन्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है। इन पायरिमिडीन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाया है और आपको ये बातें पता होगी। जब इसका हमने डीएनए बेस सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो हमें पता चला कि जो N15 जो आइसोटोप था, अगर N15 होगा तो क्या बॉटम में जाके अपना स्पेस बना लेगा डेंसिटी बेस सेंट्रीफ्यूगेशन से। और वही हुआ कि इसके दोनों स्ट्रैंड में N15 था, इसलिए एस हैवी, क्योंकि ये हैवी होता है, देयरफॉर इट कहाँ चला गया, ये बॉटम में चला गया। बोथ स्ट्रैंड के पास N15 था। अब अपना जो फर्स्ट स्टेप था इस एक्सपेरिमेंट का वो हो गया।
वो हो गया कि अपने हमारा पहला टारगेट क्या था कि हम ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो करवाएं ताकि उसके दोनों स्ट्रैंड में N15 आ जाए, और वो आ गया। हमने इसे डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से ये प्रूव भी कर दिया, क्योंकि N15 था इसीलिए वो नीचे में जाके बॉटम पे अपना पैलेट बना रहा था, बॉटम पे अपना बैंड बना रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए देखते हैं आगे के स्टेप में क्या हुआ। अब इसी बैक्टीरिया को जिसके दोनों स्ट्रैंड में N15 था, समझ रहे बात को, जिसके दोनों स्ट्रैंड में N15 था, उसी बैक्टीरिया को मैंने उठाया और अब जो है हमने क्या किया, कल्चर मीडियम को ही बदल दिया। अभी तक जो कल्चर मीडियम हम ले रहे थे वो अमोनियम क्लोराइड ही ले रहे थे, और अब भी अमोनियम क्लोराइड ही लेंगे, बट दिस अमोनियम क्लोराइड विल हैव N14, दिस विल नॉट हैव N15। और यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का लाइट वाला आइसोटोप ले लिया। एनी प्रॉब्लम? क्या होगा, एनी प्रॉब्लम? फिर उसी प्रकार से बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे। बैक्टीरिया को मैंने ग्रो करवाया तब तक जब तक कि उसके जनरेशन में N14 की भी ट्रेसेस ना मिलने लगे। जब वैसा हो गया फिर हमने फिर से एक्सपेरिमेंट किया और फिर ऑब्जर्व किया। तो व्हेन वी चेंज द मीडियम, जब NH4Cl जो अमोनियम क्लोराइड था जिसमें नाइट्रोजन के 15 वाला आइसोटोप था, जिसका मास नंबर 15 था, उसका हमने कल्चर मीडियम को बदल के क्या कर दिया, N14 वाला कल्चर मीडियम कर दिया। तो अब क्या किया कि जो हैवी नाइट्रोजन वाले जो बैक्टीरिया था जिसके डीएनए में हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट था, मतलब कि जो अपना पहला टारगेट था जो हमने ग्रो करवाया था, इसी बैक्टीरिया को हमने दूसरे कल्चर मीडियम पे जिसमें कि अमोनियम क्लोराइड N14 वाला था उसमें ग्रो करवाया, और फिर इसका डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और इसके प्रोसेस को असेस किया। व्हेन वी एक्सट्रैक्टेड द डीएनए ऑफ दिस बैक्टीरिया विच वर ग्रोन अगेन ऑन अमोनियम क्लोराइड विच वॉज हैविंग N14 नाइट्रोजन, ऑल राइट। तो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, तो हमने ऑब्जर्व किया कि उसके डीएनए में एक नाइट्रोजन 15 का था और एक नाइट्रोजन 14 वाला था। फिर दूसरा जो स्ट्रैंड बना, क्योंकि एक से तो दो बनेगा, तो एक नाइट्रोजन 15 वाला था और एक नाइट्रोजन 14 वाला था। कोई दिक्कत? और ये क्यों हुआ? क्योंकि रेप्लिकेशन हुआ होगा। अरे बैक्टीरिया तो रेप्लिकेट किया। मान लो कि एक बैक्टीरिया था, उसका अपना डीएनए रेप्लिकेट करके वो दूसरी कॉपी बनाएगा और वही अपने प्रोजेनी में डालेगा। तो हमने मान लो कि 2-3 प्रोजेनी की बैक्टीरिया के डीएनए को निकाल लिया, और जब उसका एसेस किया हमने देखा कि एक में N15 था, दूसरे में N14 था। कोई प्रॉब्लम? एक में N15 था और दूसरे में N14 था। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए क्योंकि N15 वाला जो अपना डीएनए था इकोलाई, वो उसे अब हमने N14 वाले कल्चर प्लेट पे ग्रो करवा दिया। तो अब जब नाइट्रोजन बेसिस वो लेगा तो N14 वाला ही ले पाएगा, क्योंकि वही अवेलेबल ही है, मरता क्या ना करता, वो वहीं से लेगा और वहीं से लेगा। इसीलिए उसके एक स्ट्रैंड में जो पेरेंट था उसमें तो नाइट्रोजन 15 रह जाएगा और एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजन 14 पाया गया। और दिस वाज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। और ई कोलाई में हमने इसलिए किया क्योंकि बैक्टीरिया हैज़ ए वेरी लेस डिवीजन टाइम, और ई कोलाई का स्पेसिफिक आप ध्यान रख लो, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ई कोलाई डिवाइड्स इन 20 मिनट। ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है। तो हम जल्दी जल्दी अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मतलब फास्ट एक्सपेरिमेंट करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को। कोई दिक्कत? तो जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि जो मतलब कि प्योर जो वहाँ ऊपर में मिल रहा था N15 दोनों में, जो कि हैवी डीएनए था, और उसका जब हमने डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया था तो वो बॉटम में जाके अपना बैंड बना रहा था। अब जब हमने ऑब्जर्व किया तो देखा कि यहाँ पर हाइब्रिड डीएनए मिल गया, मतलब कि जिसके एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजन 15 एंड अदर स्ट्रैंड हैज नाइट्रोजन 14। अब इस डीएनए को हमने क्या किया, ई कोलाई से एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये जो हाइब्रिड डीएनए था इसे ई कोलाई से मान लो कि मैंने एक्सट्रैक्ट किया, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन जब हमने किया तो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड कि दो हाइब्रिड डीएनए ऑब्टेन हुए। मतलब इसी को जब ये बाद का स्ट्रक्चर, ये जो है ये बाद वाला प्रोसेस है, पहले हमने यही टेस्ट ट्यूब में करते हैं, फिर हमने उस पर में रिप्रेजेंट कर दिया आपको समझाने के लिए। तो क्या हुआ, दो हाइब्रिड डीएनए ऑब्टेन हुए जो मैंने अभी आपको बताया, और दोनों जब हाइब्रिड डीएनए थे तो वो बीच में आ गए, ना तो लाइट थे ना हेवी थे, इसलिए वो बीच में आ गए, और इंटरमीडिएट डेंसिटी के थे इसलिए वो अपना बीच में बैंड बनाए। अभी भी मीडियम CH Cl ही था। दो हाइब्रिड डीएनए 2 into N15 N14। अब ये N15 और N14 वाला था ना, इसको वापस से NH4Cl वही अमोनियम क्लोराइड में ग्रो करवाया जिसमें कि नाइट्रोजन 14 ही मीडियम था। मतलब कि अब हैवी वाला नहीं डाले, N15 वाला मीडियम हमने छोड़ दिया, मात्र फर्स्ट टाइम हमने ई कोलाई को वहाँ पर ग्रो करवाया था। वापस से हमने ये वाला जो हाइब्रिड था इसे वापस से हमने NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो है 14 वाला उस पर वापस से ग्रो करवाया। अब देखते हैं क्या हुआ, जब वापस से हमने कल्चर मीडियम को NH4Cl और NH4Cl कौन वाला, ये 14 वाला ही रखा, NH4Cl ये 14 वाला ही रखा, तो हमने ग्रो देखा कि मात्र जो दो हाइब्रिड बने, क्या बने, दो हाइब्रिड बने। क्योंकि आप एक समझ लो ना क्या हुआ होगा, मान लो कि दो हाइब्रिड था, ये एक रहा और ये एक रहा,
मान लो ये रेड वाला पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर ये पेरेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ऑल राइट, अब देखो, अब जब इसका वापस से रेप्लिकेशन होगा तो क्या होना था, एक तो ये बनेगा लाइट वाला, एक ये बनेगा, और पेरेंट तो एक यही रहेगा ना। और पेरेंट मान लो पेरेंट अब क्या होगा क्या एक्चुअली में, देखिए 1 मिनट प्लीज। पेरेंट जो एक स्ट्रैंड था, मान लो पेरेंट स्ट्रैंड, यहाँ पे पेरेंट स्ट्रैंड था, तो पेरेंट स्ट्रैंड के साथ एक न्यू डीएनए जुड़ गया, और पेरेंट स्ट्रैंड के साथ एक न्यू डीएनए जुड़ गया। ये तो जो दो जो पेरेंट थे उसके साथ यदि एक न्यू जुड़ेगा भी तो यही जुड़ेगा। और जो ये डॉटर डीएनए था, जब आगे ये रेप्लिकेट करेगा तो ये पेरेंट ग्रुप में बिहेव करेगा, ये वाला, और ये भी पेरेंट ग्रुप में बिहेव करेगा। तो इसमें जब जुड़ेगा नया डीएनए तो वो तो फिर यही वाला होगा ना, N14 वाला होगा ना। तो नंबर ऑफ लाइट डीएनए मतलब कि नंबर ऑफ N14 N14, दैट इज नंबर ऑफ जो डीएनए बनेगा जिसमें अमोनियम 14 वाला, नाइट्रोजन 14 वाला होगा, उसका नंबर इंक्रीज करता जाएगा। मतलब कि नंबर ऑफ डीएनए विच हैव N14 present in their nitrogen bases will go on increasing, क्योंकि हमने कल्चर मीडियम ही वही वाला लिया है। और वही यहाँ पर हुआ भी, जब हमने किया तो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड कि मात्र जो पेरेंट वाला एक स्ट्रैंड था इसे एक बना दिया, पेरेंट वाला एक स्ट्रैंड था इसे एक बना दिया। अब वापस में फिर दोनों N14 वाले बन गए। वापस इसको आप रेप्लिकेट कराओगे, वापस से मात्र इसकी दो ही कॉपी मिलेगी जिसमें एक पेरेंट है। और फिर जो नंबर ऑफ लाइट डीएनए है, लाइटर जो डीएनए है वो विल गो ऑन इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ जो क्या कहते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला जो डीएनए है, जिसमें कि एक स्ट्रैंड में N15 होगा और एक स्ट्रैंड में N14 रहेगा, वो कांस्टेंट ही रह जाएगा। क्योंकि जो दो स्ट्रैंड है डीएनए का, वो मात्र वो दो स्ट्रैंड से ही एक N15 और एक N14 बनेगा। उसके बाद जितने भी डीएनए बनेंगे, उसके बाद जितने भी न्यूअर डीएनए बनेंगे, दोस ऑल डीएनए विल बी ऑफ लाइटर टाइप, दोस ऑल डीएनए विल हैव N14 एज नाइट्रोजन बेसिस, N14 इन प्रेजेंट इन देयर नाइट्रोजन बेसिस। क्वाइट ऑब्वियस। तो यहाँ पे क्या हमें ऑब्जर्व हुआ, यहाँ पे 4 डीएनए हमने ऑब्जर्व किया सेकंड जनरेशन में, उसमें 2 हाइब्रिड थे और 2 लाइटर डीएनए थे। लाइटर डीएनए कहने का मतलब कि डीएनए विच वाज हैविंग N14, एनी प्रॉब्लम, विच वाज हैविंग N14। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिसमें कि N14 होगा। और ये चीज़ें देखी गई, ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई। अब आगे क्या हुआ, तो जब आगे हमने इसी को वापस से डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन जब हमने करवाया, देखो ये जो रिजल्ट मैं आपको ऊपर में बता रहा हूँ ना, ये जो रिजल्ट मैं आपको ऊपर में बताता हूँ, ये रिजल्ट ऊपर में जो मैं रिजल्ट समझाता हूँ, इट इज़ एक्चुअली ये वाला प्रोसेस होने के बाद ही है। मतलब ये डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन करवा देते हैं, फिर ये प्रोसेस हमको ऑब्जर्व होता है। तो जब डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन करवाए तो हमें क्या मिला कि लाइट डेंसिटी वाला अब मिल गया। मतलब कि अभी तक लाइट डेंसिटी वाला नहीं मिला, लेकिन जब हम सेकंड जनरेशन में गए तो लाइट जनरेशन जो थर्ड जनरेशन में तो 2 डिवीजन के बाद लाइट डेंसिटी वाला मिल गया। मतलब जो लाइट डेंसिटी था इसलिए सबसे ऊपर में बनाया, और इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला मिल गया। और जो बॉटम वाला तो डेंसिटी खत्म ही हो गया। मतलब कि बॉटम डेंसिटी जो हैवियर डीएनए मॉलिक्यूल था वो तो था ही नहीं, क्योंकि हैवियर डीएनए मॉलिक्यूल्स का एक स्ट्रैंड N14, एक स्ट्रैंड क्या किया, न्यू डीएनए बनाया और उसमें N14 वाला आ गया, इसलिए वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया। आ रही बात समझ में, यही वाला प्रोसेस आगे चल होते रह गया। तो अभी तक हमने ऑब्जर्व किया, क्या किया इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, अभी तक हमने यही ऑब्जर्व किया। देखिए पूरी समरी मैं आपको 5 मिनट में बता देता हूँ। जितना आपको आपने पूरा देखा ना, पूरा राम कहानी, मैं आपको बस 4 से 5 मिनट में समराइज़ कर दूंगा। कुछ नहीं है, काफ़ी आसान चीज़ है, एनसीईआरटी पढ़ लेना, मज़ा आ जाएगा। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा मैंने, बस आप जाकर एक बार पढ़ लेना। हुआ क्या ना कि हमने CaCl का एक कल्चर मीडियम लिया, उसमें N15 और N14 टाइप के 2 नाइट्रोजन के आइसोटोप्स लिए। उस 2 नाइट्रोजन के आइसोटोप्स को पहले क्या किया मैंने कि मतलब कि 2 नाइट्रोजन के आइसोटोप्स को लेकर 2 अलग अलग कंपाउंड बनाए। एक बनाया अमोनियम, दोनों ही कंपाउंड अमोनियम ही क्लोराइड था, लेकिन एक अमोनियम क्लोराइड में हमने N15 वाला नाइट्रोजन लिया, दूसरे में N14 वाला नाइट्रोजन लिया। जब हमने फिर क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को ढूंढा, और उस ई कोलाई बैक्टीरिया को सबसे पहले में उस ई कोलाई बैक्टीरिया को जो नाइट्रोजन 15 वाला जो अमोनियम क्लोराइड था उस पर ग्रो करवा दिया। जब नाइट्रोजन 15 वाले अमोनियम क्लोराइड पे ग्रो करवाया जब हमने, तो वी ऑब्जर्व्ड, तब तक हमने ग्रो करवाया जब तक कि उस बैक्टीरिया के डीएनए में N15 इनकॉर्पोरेट ना हो जाए। जब वो इनकॉर्पोरेट हो गया, फिर हमने उसका डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन करके रीचेक कर लिया कंफर्मेशन के लिए। जब हमने रीचेक किया तो हमें पता चला कि हाँ वो हैवी बैंड नीचे में बना रहा है, और हैवी N15 होता ही है, इसलिए वो नीचे में बैंड बना रहा था। ऑल राइट, सारी चीज़ें सही गई, और हमारा जो प्रोसेस था फर्स्ट स्टेप वो कंप्लीट हो गया कि N15 आ गया। फिर हमने क्या किया, उसी कोलाई को जिसके अंदर N15 था, वी ग्रू
that E. coli into a medium containing ammonium chloride, but this time this ammonium chloride was having N14. all right, क्या था? N14, नाइट्रोजन 14 टाइप वाला था। कोई दिक्कत? जब N14 वाले में हमने उसे ग्रो करवाया तो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड कि जब आगे जब हमने फिर उसके डीएनए को कि एनालिसिस के तो हमें पता चला कि डीएनए रेप्लिकेशन जब वो इक्वलाई किया तो हमें पता चला कि जो आगे वाला जो डीएनए था उसके एक स्ट्रैंड में N15 था और एक में N14 था। दूसरे भी जो उसका जो दो मतलब कि 1 से 2 बनेगा बैक्टीरिया, तो जो 1 से 2 बना तो जो दोनों डीएनए था उसमें एक में तो N15 था और एक में N14 था। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट डीएनए था वो अलग अलग सेमी कंजर्वेटिव टाइप से डिवाइड किया, और सेमी कंजर्वेटिव टाइप से पेरेंट डिवाइड किया, इसीलिए पेरेंट का कंट्रीब्यूशन ईच डीएनए में 50% रह गया, और जो हैवियर डीएनए था पेरेंट का अपना अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया। आगे फिर हमने थर्ड जनरेशन के लिए देखा, तो आगे जब हमने थर्ड जनरेशन के लिए देखा तो थर्ड जनरेशन में हमने ऑब्जर्व किया कि मात्र 2 ही इंटरमीडिएट टाइप के डीएनए बन रहे हैं, बाकी फिर लाइटर डीएनए का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो गया, क्योंकि कल्चर मीडियम में जो अपना नाइट्रोजन है वो वही है, तो नाइट्रोजन बेसिस जो बनेंगे वो N14 टाइप वाले ही बनेंगे। इसीलिए जब डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ तो जो लाइटर डीएनए का नंबर था इट गोस ऑन इंक्रीजिंग, और लाइटर डीएनए का भी एक बैंड उस CaCl में हमें ऑब्जर्व हो गया। यही ये पूरा एक्सपेरिमेंट था और कुछ भी नहीं था। इससे ये बात प्रूफ हुई कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो एक स्ट्रैंड में जब N15 है और दूसरे स्ट्रैंड में N14 है, इसका मतलब है कि दोनों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हुए होंगे और एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट के रूप में काम किया होगा, और वो टेम्पलेट फिर एक नए स्ट्रैंड को बनाया, फिर जो दूसरे में जो पेरेंट स्ट्रैंड था वो भी टेम्पलेट के रूप में काम किया और वो एक नया स्ट्रैंड को बनाया। अब ये दोनों जो बने ये फिर से पेरेंट हो जाएंगे अगले जनरेशन के लिए, तो जो 2 पेरेंट हुए ये फिर से टेम्पलेट को अपने को टेम्पलेट के रूप में बिहेव करेंगे और नया डीएनए बनाते जाएंगे, और यही प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और इसी तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। दिस इज व्हाट ऑल वी हैव स्टडीड टिल नाउ, और यही आपके एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। एनी प्रॉब्लम? आप जाकर एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगी। आगे देखते हैं यूकैरियोट्स में। देखिए ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में ई कोलाई में किया गया था, देयरफॉर इट दिस एक्सपेरिमेंट वाज मेनली टारगेटेड ऑन प्रोकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में यही एक साइंटिस्ट थे टेलर एटॉल, कहने का मतलब टेलर एंड कंपनी, मतलब कि टेलर और उनकी टीम मिलके, टेलर साहब और उनकी टीम मिलके सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का जो मेथड है, एक बीन है, बीन मतलब कि एक फली है जिसका नाम है विसिया फावा। दिस विसिया फावा को, जिसे अपन फावा बीन्स भी बोलते हैं, जो कि आरबीसी का रप्चर में भी डच ने एक डिजीज़ आपने पढ़ा होगा, इसमें यह विसिया फावा काफ़ी मतलब कि हार्मफुल होता है। तो ये विसिया फावा जो है इट इज़ एक्चुअली यूकैरियोट्स। तो इसमें ये इन्होंने यूकैरियोट्स में मतलब कि टेलर एटॉल ने इसी सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए को प्रूव किया था यूजिंग हिज टीम। और इसमें जो इन्होंने क्या किया था ना, इनका जो टेक्निक था, इन्होंने रेडियो एक्टिव दैट इज ट्राइसिएटेड थाइमिडीन, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को इन्होंने इस्तेमाल किया था। देखिए आपको पता है ट्राइसिएटेड कहने का मतलब ट्राइटियम आपने पढ़ा है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटीसियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटीसियम जो है ना, तो वही ट्राइटीसियम जो हाइड्रोजन का जो जिसका मास नंबर 3 होता है ना, वही ट्राइटीसियम वाला आइसोटोप को लिया था विच इज़ रेडियो एक्टिव। और थाइमिडीन तो आपको पता ही है, थाइमिडीन क्या होता है, थाइमिडीन इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड। तो ट्राइसिएटेड थाइमिडीन का इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया गया था। बस यही आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यूकैरियोट्स में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को किसने प्रूव किया? टेलर ने प्रूव किया। इन विच ऑर्गेनिज्म किसने प्रूव किया? फावा बीन्स में प्रूव किया, विच इज़ अ यूकैरियोट, और ये एक तरह का क्या फैबेसी का मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, करिए ये क्वेश्चन कर लो, सारा का सारा जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इसी में लग जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है, फिर भी आप पूरा करना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है क्या? ए डीएनए सैंपल was containing N15 in both strands was allowed to replicate in a medium containing NH4Cl, लेकिन कौन वाला? 14 वाला, फॉर 3 जनरेशन। और जो डीएनए सैंपल है उसका डिवीजन टाइम जो है वो 20 मिनट है। तो 60 मिनट के बाद बताइए टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितना होगा? बताइए कि जो डीएनए मॉलिक्यूल विद N15 इन बोथ स्ट्रैंड्स क्या होगा, डीएनए मॉलिक्यूल विद N14 इन बोथ स्ट्रैंड्स क्या होगा, एंड डीएनए मॉलिक्यूल विद N15 इन एटलीस्ट 1 स्ट्रैंड क्या होगा, N14 इन एटलीस्ट 1 स्ट्रैंड क्या होगा। ये सारा पांचों क्वेश्चन आपके लिए है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ डीएनए 2⁻n। अब मान लो कितना डिवीजन, कितना बार डिवाइड करेगा? 3 बार, तो 2⁻n
2 to the power 3 8, ऐसे ऐसे करके आपको पांचों क्वेश्चन निकालना है. डू सॉल्व दिस एंड मैसेज द आंसर्स मी इन कमेंट. If any doubt, please contact me again. Till then, keep learning, keep studying, and keep growing. Meet you in next video. Till then, bye bye. If you like, then please subscribe the channel for getting notification for the next video. Thank you.